Hi friends, in the previous section we have learned about the inverse trigonometry function of objective questions. Today we are going to discuss same topic, that is inverse trigonometry functions shortcut method, multiple choice question. That is, so first problem given, sine inverse of 2 cos square x minus 1 plus cos inverse of 1 minus 2 sine square x, that is equal to have option, that is first A pi by 2, B pi by 3, C pi by 4 and D pi by 6. Okay, now listen here. This problem here given sin inverse of 2 cos square x minus 1 दिया है, तो हमें 2 cos square x minus 1 है ना, हम लिख सकते हैं cos 2x और sin inverse as it is हो गया. सिमिलरली यहाँ पे प्लस cos इनवर्स लिख लेते हैं. हमारे पास आइडेंटिटी आता है cos 2x आल्सो यू कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं. यहाँ दोनों फंक्शन सेम है, cos इनवर्स ऑफ cos 2x. सो हमारा फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x. सो दिस यू कैन राइट 2x. Now here this cos x you have to change in terms of sine, because outside of bracket हमारे पास क्या है, यहाँ पे sin इनवर्स x है, तो हमको चेंज करना है इसको cos को sin में. तो इस फर्स्ट एज इट इज लिख देंगे sin इनवर्स, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग sin लिख के और यहाँ पे पाई बाई 2 और माइनस 2x लिख देंगे. तो यू नो sin 90 minus alpha equal to, that is the cos alpha. So if you go to reverse you will get cos. So you can write now this again, this two terms get eliminated. So left part कितना हुआ हमारे पास, pi by 2 minus 2x और plus 2x. So this minus 2x and plus 2x get cancelled. Our answer is pi by 2. So first question option is right answer is pi by 2. Okay, now come to the second question. Second question given here, tan inverse of cos x equal to tan inverse of 2 cosec x. Okay, if you observe this problem, that is second one, tan inverse of cos x equal to tan inverse of 2 cosec x. Okay, 2 cosec x. तो यहाँ पे देखो, यहाँ tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 रहना चाहिए, 2 tan इनवर्स. सेकंड प्रॉब्लम में 2 tan इनवर्स है, तो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में यहाँ सिर्फ tan इनवर्स x है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास 2 tan इनवर्स है. तो यहाँ पे हम लोग को टू tan इनवर्स है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स x में. तो हम we know the formula, that is you can write 2 tan inverse x, that is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square. Okay, so this property you can apply. So here this in place of cos x, here x is there, so here cos x, so you can write tan inverse, that is 2 cos x by 1 minus cos square x. Okay, and right hand side as it is लिख लेंगे tan inverse 2 cosec x. अब यहाँ पे क्या करना है, tan inverse एलिमिनेट कर सकते हैं. लेफ्ट पार्ट कितना है हमारे पास 2 cos x, और यहाँ पे 1 minus cos square, you can write sin square x, and here 2 left, and this cosec reciprocal of 1 by sin x. Okay, now observe here, this 2 get cancelled, here sin and this sin get cancelled. Left part here cos x by sin x, कितना बचा यहाँ पे cos x by sin x. ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1. cos by sin you know already, it is how much, cot x equal to 1. In terms of cot when you get 1, that is the cot 45. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cot x equal to cot pi by 4.
Therefore our x value here pi by 4. So for second question, that is 2 tan inverse of cos x equal to tan inverse of 2 cos x. Option is C, that is a pi by 4 right answer. Now come to the third problem. Third problem given here, if tan inverse 2 plus tan inverse 3 are two angles of a triangle, then you have to find out the third angle. Then you have to find out the third angle. Okay, then you have to find out the third angle. तो ये यहाँ पे टू ट्रायंगल का टू एंगल्स दे दिया है और यहाँ पूछ रहा है थर्ड एंगल क्या है, ये हमको मालूम करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे थर्ड एंगल मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लेते हैं सॉल्यूशन इसका, दैट इज tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ले लेते हैं. ठीक है, सो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3. हमारे पास जो फॉर्म आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy. Here condition is product of this x and y must be greater than 1. If greater than 1, then only you can consider this condition, that is tan inverse x plus tan inverse y equal to pi plus tan inverse x plus y by 1 minus xy. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया. तो यहाँ पे 2 into 3 6, that is greater than 1. So you have to use this formula, that is pi plus tan inverse 2 plus 3 by 1 minus 2 into 3. If you more simplify, pi plus tan inverse 5 by 1 minus 6. More simplify, pi plus tan inverse 5 by minus 5. Both will get cancel. कितना हमारे पास आएगा tan inverse of 1. But we know that is tan inverse of minus x equal to minus of tan inverse x. Okay, so from this you can write pi minus tan inverse 1. In terms of tan, when you get 1, that is a pi by 4. So if you simplify, you will get 3 pi by 4. This is the simplification of tan inverse 2 plus tan inverse 3. But you know already, sum of the angles of a triangle equal to 180 degrees. एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है. तो हम थर्ड एंगल क्या करेंगे, सपोज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 करेंगे तो थर्ड एंगल मालूम करना है, तो c इक्वल टू 180 माइनस में से a प्लस बी कर देंगे. तो यहाँ पे ये टू वैल्यूज है a और b. देयरफॉर द थर्ड एंगल इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, जो आंसर आया उसको हम माइनस कर देंगे 3 पाई बाई 4. दैट इज 4 एलसीएम 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 4. सो हमारा आंसर कौन सा हो गया है 5 बाई 4 हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेते हैं. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है साइन इनवर्स, दैट इज फोर्थ प्रॉब्लम, साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 cos inverse x equal to pi. Then you have to find out the x value. Okay, option, that is 1 by 2, b is root 3 by 2, c is 1 by root 2 and d is 3 by 5. These are the option. ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉब्लम कर देते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x प्लस 4 cos इनवर्स x इक्वल टू पाई है. ठीक है, और हमको x का वैल्यू मालूम करना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ साइन इनवर्स x है, यहाँ 4 cos इनवर्स x. हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x एज इट इज लिख लेते हैं. 4 है ना,
4 को हम 1+3 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1+3 कर लेंगे। सो यहाँ हो गया cos इनवर्स x अब +3 cos इनवर्स x इक्वल टू हाउ मच पाई। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी आता है, वह होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है स्टूडेंट्स पाई/2 होता है। कितना होता है पाई/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है ना, उसको एलिमिनेट, उसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई/2। तो ये होल वैल्यू हो गया पाई/2 अब +3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी पाई है और राइट हैंड साइड में भी क्या है पाई है, तो हम क्या करेंगे वन टाइम वन साइड इसको लेके चले सकते हैं। सो हमारा 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 हो गया। सो हमारा कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये जो एक कॉस इनवर्स है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू कॉस पाई/6। सो इन टर्म्स ऑफ कॉस पाई/6 दैट इज कॉस 30 वैल्यू यू नो ऑलरेडी, दैट इज हाउ मच √3/2। सो आवर आंसर इज √3/2। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। और एक क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, फोर्थ हो गया, फिफ्थ ले लेते हैं हम लोग। cos if cos इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 4/3 ओके प्लस tan इनवर्स 1/7, देन यू हैव टू फाइंड आउट x वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, यहाँ पे cos में दिया है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ कॉट में दिया है कॉट इनवर्स और यहाँ पे tan इनवर्स दिया है। तो जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे कॉट इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है, ये दोनों को क्या करेंगे सिमिलर टर्म में उसको कन्वर्ट कर लेना है, सिमिलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दैट इज cos इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसको सेम एज इट इज रख देते हैं, cos इनवर्स x एज इट इज रखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड है ना cot रेसिप्रोकल होता है tan का, किसका होता है tan का, तो हम cot को tan में लिखने के लिए ये जो एलिमेंट्स है उसको चेंज कर देना है। तो tan इनवर्स हमारे पास 4/3 रिवर्स कितना होगा हमारे पास 3/4 हो जाएगा अब प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फिर हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y/1 माइनस x। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्टकट मेथड दिया है इसका, वो tan इनवर्स m/n इक्वल प्लस tan इनवर्स n माइनस m/n प्लस m फॉर्म में आता है तो उसका आंसर क्या होता है हमारे पास पाई/4। ठीक है, इसके हमने एक्सप्लेन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट मेथड के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स x, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्म में आएगा, इसका आंसर कितना हो जाता है हमारे पास पाई/4 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास cos पाई/4। सो इन टर्म्स ऑफ cos 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45, दैट इज 1/√2। हम ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√2। So for fifth problem our answer is C is the right answer 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे दैट इज 6th वन, tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स 0। ऑप्शन इसका 0,
बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 1/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स 0 है। सो इन टर्म्स ऑफ cos व्हेन यू गेट 0 कब आता है, 90 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan 1/2 एज इट इज, और यहाँ क्या करेंगे π/2 लिख देंगे। तो हमारे पास tan π/4 कितना होता है, tan π/4 वैल्यू दैट इज द 1, सो इक्वल टू 1, और ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 6th प्रॉब्लम। अब हम लोग 7th प्रॉब्लम चलते हैं। 7th वाला क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इसका भी ऑप्शन सेम है, A 0, B -1, C 1 और D कितना है 1/2। सिंपल है प्रोसेस। देखो यहाँ पे करना क्या है, इनसाइड द ब्रैकेट दो टर्म्स है यहाँ पे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/2 है और कॉस इनवर्स 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे करने से पहले देख लेना यहाँ पे हम लोगों को कि दोनों ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, और मिडिल में क्या है प्लस है। ठीक है, और दोनों का जो वैल्यू है 1/2 1/2, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है। वो आइडेंटिटी हो गया साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स, π/2 होता है। कितना होता है, π/2। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे, दैट इज साइन π/2। और पता है साइन 90 वैल्यू हाउ मच, 1 होता है। कितना होता है, 1। सो राइट हियर 1। सो फॉर 7th ऑप्शन दैट इज सी इज द राइट आंसर। ओके, ये हो गया 7th वाला। और एक लेते हैं हम लोग 8th वाला ले लेते हैं, दैट इज cos इनवर्स ऑफ -1/7 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/7। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कैसा करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस रहता है उसको पहले हमको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो cos एज इट इज हो जाएगा, यह पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/7 माइनस साइन इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, दोनों में से हम cos इनवर्स x साइन इनवर्स x में से माइनस कॉमन ले लेंगे, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो cos ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/7 प्लस साइन इनवर्स 1/7। और यहाँ देखो फिर से प्रॉपर्टी आ गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। सो यू कैन राइट cos ऑफ पाई माइनस π/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर में, और 2π माइनस पाई π/2 आ जाएगा। सो cos 90 वैल्यू हाउ मच, कितना होता है बाबू, cos 90 इज 0। सो हमारा 8th ऑप्शन हो गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग 9th कर लेते हैं। नाइन्थ प्रॉब्लम यहाँ पे सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 2। ऑप्शन A1, B5, C0, D15, यह इसका ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर्स है ब्रैकेट में, tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, दोनों को सिंगल टर्म में इधर कोसेक को कॉट में या सेक को tan में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास दो आइडेंटिटी आता है। फर्स्ट आइडेंटिटी सेक स्क्वायर, सपोज x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 हो जाता है,
और सेकेंड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, नॉट ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी स्टार्ट। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को हम कन्वर्ट करना है tan में, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। दिस यू कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, this you can write cosec, that is 1 plus cot square of cot inverse 2, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ लिसन, दिस यू कैन राइट 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 1 प्लस cot ऑफ cot इनवर्स 3 होल स्क्वायर, तो ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x और cot इनवर्स ऑफ cot x। सो 1 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर। सो यू नो दिस 1 प्लस 1 2 एंड दिस वन बिकम 4 एंड दिस वन बिकम 9। सो 2 प्लस 4 9, दैट इज द 15 is the right answer. So for this option D is the right answer. ओके, ये हो गया हमारा 9th वाला प्रॉब्लम। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कर लेते हैं 10th वाला। ये 10th वाला प्रॉब्लम भी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स आर यू कैन से मल्टीपल चॉइस आंसर। 10th प्रॉब्लम, tan इनवर्स ऑफ cos x by 1 plus sin x। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज 5/3 minus x by 2, second option is 5/4 minus x by 2, third option is 5/3 plus x by 2, फोर्थ ऑप्शन इज 5/4 plus x by 2, ठीक है। ये हमारा ऑप्शंस हो गया। अब करना कैसे, इसको इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके थोड़े लेंथी मेथड भी होता है, शॉर्टकट मेथड भी होता है, हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे विद इन ब्रैकेट में cos है और sin है। अब हमको क्या करना है, दोनों को कन्वर्ट करके tan में ही कन्वर्ट कर लेना है। तो देखो यहाँ पे cos को हम लोग फर्स्ट रिमूव कर सकते हैं, दिस यू कैन राइट sin π/2 माइनस x, ओके। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स, देखो यूज कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला होता है sin x, यू कैन राइट 2 sin x/2 एंड cos x/2। सिमिलरली cos, दैट इज सम मल्टीपल्स फार्मूला हम यूज कर लेंगे, दैट इज 1 प्लस cos x, यू कैन राइट 2 cos स्क्वायर x/2। ये 2 फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम मल्टीपल का फार्मूला है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास sin s का फार्मूला में 2 sin, दैट इज x की जगह π/2 है, तो यहाँ पे by 2 होते 4 हो जाएगा और by 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे π/4 माइनस x/2, यहाँ पर भी लिखेंगे cos π/4 माइनस x/2। डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos, दैट इज 2 cos स्क्वेयर π/4 अब माइनस x/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos और एक सिंगल cos कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट जो पार्ट होगा न्यूमरेटर में sin π/4 अब माइनस x/2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में जाएगा हमारे पास cos π/4 अब माइनस x/2 होगा, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे sin बाई cos कितना होता है, दैट इज tan, सो यू कैन राइट tan π/4 minus x/2। Again tan inverse of tan x you can eliminate, so left part is π/4 minus x/2, π/4 minus x/2। so हमारा ऑप्शन नंबर दैट इज द B is the right option, ठीक है। सो आज हम लोग 10 प्रॉब्लम्स किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।